कोट याद आ रहा है, यानी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत हो। मीन्स बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं। He was a role model for not only the people of his country but to the whole world. If you find a path, you will have to forget a million of paths. अगर आपको ये पाथ चुनते हैं तो आपको अन्य पाथ छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप Architect of his destiny, respected principal sir, vice principal sir, intelligent teachers, and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am Akanksha standing here in front of you all to represent my speech on the occasion of Swami Vivekananda Jayanti. So, the people of India celebrates 12th January as National Youth Day to commemorate the birth of Swami Vivekananda. He was one of the most popular reformers of India. He was an eminent philosopher, thinker, and scholar of India. He was born on 12 January 1863 in Calcutta into an upper middle class family of Kayas caste in Bengal. His original name was Narendranath Datta, and after becoming a monk, Narendra was named Swami Vivekananda. Vishwanath Datta, an attorney at Kolkata High Court, was his father, and his mother, Bhuvaneshwari Devi, was a devout housewife. The personality and the thoughts of Swami Vivekananda were highly influenced by the sensible attitude of his father and the religious disposition of his mother. From a young age itself, Narendra was interested in divinity. He was a prolific reader with philosophy, religion, social science, history, art, and literature as favorite subjects. He also exhibited strong zeal for religious scriptures, including the Puranas, the Vedas, the Upanishads, and so on. He spent his leisure time engaging in meditations. From 1888 to 1893, he traveled all across India and he started his journey to the West on 31 May 1893. In the same year, he presented his most famous speech at the Parliament of World Religions in Chicago. He started his brief speech representing India by addressing the audience as sisters and brothers of America. After returning from Europe on 1st May 1897, Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in Calcutta. The divine soul of Swami Vivekananda left this world on 4th July 1902. From him, every single soul on this planet is divine, thus he actively engaged in serving people. He was a role model for not only the people of his country, but to the whole world. We shall make efforts to inculcate his qualities and become a best person. Thank you. Have a nice day. पीने से क्या उसका स्वाद तो नहीं बदल गया। तो इसी वाक्य से आप समझ सकते हैं कि उनके विचार कितने उत्तम। अगर मानव हैं तो सभी मानव का सम्मान होना चाहिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग विशेष से हैं। लेकिन उनका एक कहना था कि अगर आपने कुछ भी मन में ठाना है तो उसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। उनका एक कोट याद आ रहा है, यानी कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत हो। मीन्स बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इस कड़ी में मैं अब बुलाना चाहूँगा कक्षा 10वीं की छात्रा। लर्नेड कलीग्स और प्यारे बच्चों, हम सब लोग यहाँ स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के एक महान योगी, एक निडर, निर्भीक, ओजस्वी, तेजस्वी सन्यासी, जिसने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पश्चिम में भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि पश्चिम में जो भारत की छवि थी वो कुछ हद तक बदल गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, 15 वर्ष की उम्र में जब वो एक अंधकार से जूझ रहे थे, तब उन्हें अपने पड़ोस में एक पुस्तक मिली जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान थे। उस पुस्तक का नाम था कोलंबो टू अल्मोड़ा। उन्होंने उसे पढ़ा। 20 वर्ष की आयु में वो कैम्ब्रिज गए। आज का यूपीएससी जो उस समय का ICS था, उन्होंने उस परीक्षा को पास किया, यहाँ आए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे। वो सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहते हैं कि मैंने भारत से प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से।
सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। सुभाष चंद्र बोस की 2 पुस्तक हैं, एक द इंडियन स्ट्रगल और दूसरी इंडियन पिलग्रिम्स एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। उसमें वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के जीवन में हमारे पास्ट के प्रति गर्व, हमारे भूतकाल के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास, ये चीजें जागृत की। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी एक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंदा's नेशनलिज्म वाज Hindu nationalism. It was not anti of anyone. It was not anti-Muslim. It was not narrow nationalism. साथ ही साथ वो भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत से विचार दिए, लेकिन एक विचार जो सभी युवाओं को प्रेरणा देता है वो होता है निर्भीक बनो, बी फियरलेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही एक पर्सनल सेक्रेटरी थे एम.ओ. मथाई, उनकी एक पुस्तक है रेमिनेंसेस ऑफ नेहरूज एज। उसमें वो लिखते हैं कि उसमें वो वार्तालाप लिखते हैं अपना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच का संवाद है। जिसमें वो लिखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पिछली सदी में जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उन सभी में महान स्वामी विवेकानंद है, ना कि गांधी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कोट्स हैं। विवेकानंद से ने बहुत सारे कोटेशंस दिए हैं। एक कोटेशंस में जाते जाते आप लोगों को बीच शेयर करना चाहूँगा। विवेकानंद ने कहा कि टेक अप एन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट दैट आइडिया बी इन योर माइंड, योर ब्रेन एंड फॉरगेट ऑल अदर आइडियाज। एक विचार को चुनो, उस विचार के साथ जियो, उस विचार के बारे में सोचो, उस विचार के स्वप्न देखो और उस विचार को अपने मन मस्तिष्क में इस तरीके से बसा लो कि अन्य कोई विचार आपके साथ ना आ पाए। जैसे अभी आप लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग विचार रख लीजिए कि हम लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अन्य कोई विचार नहीं लाइए। 2 चीजें और कही इस बात के साथ कि if you find a path, you will have to forget a million of paths। अगर आप कोई एक पाथ चुनते हैं तो आपको अन्य पाथ छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप चुनते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें पढ़ाई करनी है, तो आपको अन्य चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल देखना छोड़ना पड़ेगा, यहाँ वहाँ छुप के मोबाइल देखना छोड़ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें और भी ज़्यादा। स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कम था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद।